Dear students, welcome to the next lecture of quantum physics. कल ਆਪਾਂ डी ब्रॉगली कंसैप्ट ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ डी ब्रॉगली कंसैप्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੇਵ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Every material particle is associated with a wave. पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਵ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, velocity of wave associated with a material particle ਇਹ ਜੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ v ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਜਿਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਓਵਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਡੀ ਬਰੌਗਲੀ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੇਵ ਪੈਕਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਵ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਵਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਪੈਕਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਵੇਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਵਸ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਵਸ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੇਵ ਪੈਕਟ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਵਸ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੇਵ ਪੈਕਟ। ਤੇ ਵੇਵ ਪੈਕਟ ਜਿਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫੇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ।
फेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी है एक वेव की, सिंगल वेव की, जिहड़ी कि मटीरीयल पार्टिकल नाल एसोसीएटेड हुंदी है। तो इहदी जिहड़ी वैल्यू है ये स्पीड ऑफ लाइट तो वध हुंदी है। ग्रुप वेलोसिटी ये वो वेलोसिटी है जिहड़ी ग्रुप ऑफ वेव्स, एक तो ज़्यादा वेव्स की रिजल्टेंट वेलोसिटी है जिहड़ियां कि मटीरीयल पार्टिकल नाल एसोसीएटेड हुंदियां ने। तो हुण जो अपना प्रेजेंट लैक्चर है उस लैक्चर दे विच आपां प्रूव करना है, टू प्रूव ग्रुप वेलोसिटी is equal to velocity of particle। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੋਚ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਵ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ विद अ लिटल ऑफ मॉडिफिकेशन कि वो वेव गिनती दे विच एक नहीं हुंदी, एक तो वध हुंदियां ने। तो ज़्यादा वेव्स नूं डील करना थोड़ा मुश्किल है। तो इस आर्टिकल नूं प्रूव करन दे लई असीं ये मान लैंदे आ कि जिहड़ा साडा वेव पैकेट है, असीं ये मान लैंदे आ कि जिहड़ा साडा वेव पैकेट है वो टू वेव्स तो बनया होया है। मतलब जिहड़ा साडा मटीरीयल पार्टिकल है जदों वो मूव करता है तो उस दे नाल दो वेव्स जुड़ियां हुई ने। ये दो वेव्स ऐदां दियां ने जिन्हां दा एंपलीट्यूड बराबर है एंड they have slightly different angular velocities। तो असीं ये मान लैंदे आ कि साडा जिहड़ा वेव पैकेट है ये दो वेव्स तो मिल के बनया होया है। ये दो वेव्स किद्दां दियां ने जिन्हां दा एंपलीट्यूड बराबर है तो इन्हां दी एंगूलर वेलोसिटी दे विच थोड़ा ही फर्क है। सो बेटा ये दोनों वेव्स नूं असीं मैथमेटिकल फॉर्म दे विच लिखदे हां। y1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट वेव, a इज द एंपलीट्यूड, साइनोसॉइडल फंक्शन, ए हैगा वेव पार्ट, ये दूसरी वेव है क्योंकि दोनों का एंपलीट्यूड बराबर है। दोनों की एंगूलर वेलोसिटी ते वेव नंबर दे विच स्लाइट चेंज कर दिंने आ असीं। ओमेगा नूं लिखता ओमेगा प्लस डी ओमेगा, वेव नंबर नूं लिखता के प्लस डी के इंटू एक्स। सो ये बेटा साडे लवे दो वेव्स ने जो असी सपोज कीतियां ने कि मटीरीयल पार्टिकल जिहड़ा है वो ये दो वेव्स नाल असी मान लैंदे आ भी जुड़िया होया है। तो मतलब साडा जिहड़ा वेव पैकेट है वो दो वेलोसिटीज़ तो बनया होया है। अकॉर्डिंग टू सुपर इंपोजिशन प्रिंसिपल रिजल्टेंट वेव जिहड़ी है उसनूं असीं फाइंड कर सकते हैं। तो उसका जिहड़ा एंपलीट्यूड है उसका फार्मूला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नूं यूज करके असीं लिख सकते हैं y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इत्थे असीं इक्वेशन नंबर 1 तो y1 ते y2 की वैल्यू पुट कर दिंदे आ।
सो इत्थे बेटा ए कॉमन आ जाता है, तो जो ये कॉमन आ जाता है तो अंदर जिहड़ा है वो cos C प्लस cos D बच गया, cos C प्लस cos D बच गया। तो इत्थे असीं CD फार्मूला लगा दिंने आ मैथ का, तो जो असीं CD फार्मूला लगाने आ तो साडे कोले cos C प्लस D बाय 2, जो असीं बेटा इनू ऐड करते हैं तो ये साडे कोले आ जाना है इंटू cos D माइनस C बाय 2। सो असीं ये CD फार्मूला लगाया, इनू असीं सॉल्व करिए तो देखो साडे लवे आ जाता है आफ्टर लिटल सिंपलीफिकेशन सो सिंपल मॉडिफिकेशन तो बाद साडे कोले ये फार्मूला जिहड़ा है ये बन जाता है, क्योंकि स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज एंड स्लाइट डिफरेंस इन वेव नंबर है तो डी ओमेगा बाय 2 कैन बी नेगलैक्टेड, डी के बाय 2 इट कैन आल्सो बी नेगलैक्टेड। सो ये जिहड़ी नेगलैक्शन है ये असी इत्थे करते हैं, सो एज दीज वैल्यूज आर स्मॉल सो डी ओमेगा प्लस डी ओमेगा बाय 2 नूं असी लिख सकते हैं ओमेगा, के प्लस डी के बाय 2 इसनूं असी लिख दिंदे आ के। तो ये जो अप्रॉक्सीमेशन असी लगाई है ये फस्ट पार्ट ऑफ द अबव इक्वेशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ y ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ a cos omega t minus kx cos d omega by 2t minus dk by 2x। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਵੇ y ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सुपर इंपोजिशन तो बाद जो सानू रिजल्टेंट वेव मिली तो इसनूं असी इक्वेशन नंबर 3 नाल लिख दिंदे हां। इस तो बाद असी फेज वेलोसिटी की गल करते हैं। तो जिहड़ी फेज वेलोसिटी है ग्रुप वेलोसिटी है। फेज वेलोसिटी हुंदी है जे पार्टिकल एक वेव नाल जुड़िया होवे तो वह कितनी वेलोसिटी दे नाल चलेगी। द फेज वेलोसिटी इज गिवन बाय the phase velocity is given by it is equal to nu lambda 2 पाई नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ 2 पाई नाल डिवाइड कर दिंदे आ ऐदां लिख सकते हैं असीं बेटा इहनूं 2 पाई न्यू 2 पाई बाय लैम्डा लैम्डा नूं असीं नीचे लै गए so it is omega by k। so this is our phase velocity। तो ये जिहड़ी phase velocity का फार्मूला है इहनूं असीं 4 नंबर इक्वेशन नाल लिख लैंदे आ। now group velocity is given by group velocity हुंदी है
ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਵ ਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। resultant velocity of waves of which wave packet is supposed to be formed, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ it is d omega by dk। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, d omega by dv, dv by dk, dv ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, dv ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ। so it can be written as d omega by dv dk by dv। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਨੰਬਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। as omega is equal to 2 pi nu, ਤੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ, ਪਲੈਂਕਸ ਥਿਊਰੀ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੇਵ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਡਿਊਅਲ ਨੇਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 2 pi mc square divided by h। according to Einstein relation mass ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ m naught 1 minus v square divided by c square। so mass of a moving particle is equal to m naught rest mass 1 minus v square by c square। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗਰੁੱਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡੈਟ ਇਜ਼ d omega by dv। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਓਮੇਗਾ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ d omega by dv ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। d omega by dv, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 pi c square by h m naught। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ d by dv 1 minus v square by c square minus 1 by 2, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1 by square root ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ minus 1 by 2 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, minus 1 by 2 ਪਾਵਰ ਕਮਸ ਫਾਰਵਰਡ, ਸਿੰਪਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 by 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰਮ ਬਚ ਗਈ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਬਚ ਗਈ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਫਸਟ ਟਰਮ 1 ਹੈ ਇਹਦਾ 0 ਮਾਈਨਸ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2v ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ c ਸਕੁਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 2 pi m naught c ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ c ਸਕੁਅਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 2 pi m naught v divided by h 1 minus v square by c square power minus 3 by 2। so it is d omega by dv। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। this is equation number 6। ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਟਰਮ ਹੈ dk by dv। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ k ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ v ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ k ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਵ ਨੰਬਰ, ਇਟ ਇਜ਼ 2 pi by lambda। ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੀ ਬਰੋਗਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ lambda is equal to h over mb। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ k ਆ ਜਾਣਾ 2 pi ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ h over mb, mv ਪਲਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ 2 pi by h into mv। ਅਗੇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਮਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਮਾਸ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ 1 minus v square divided by c square। ਸੋ dk by dv
2 पाई m नॉट h कांस्टेंट आ गया, डेरिवेटिव ऑफ द टर्म v 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, ये स्क्वेयर रूट है, डिनोमीनेटर च है तो यदि पावर -1/2 असी लिख दें, तो इसनों असी हुण इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करते हैं 2 पाई m नॉट डिवाइड बाय h, फर्स्ट टर्म एज सच, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म एज सच, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, पावर कम्स फॉरवर्ड, पावर घट गई एक, ये आ वाली टर्म का डेरिवेटिव है, ये पहला भी आप करके चुके हैं जदों असी डी ओमेगा बाय डी वी लभ्या सी, दिस इज 1। हुण बच्चों ये आप कॉमन लभदे हैं, आ बेटा माइनस ते 2 इधर कैंसल हो जाना है, 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर पावर -3/2 कॉमन कढ़ लिया, ये आ गया वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, तो इधर बच जूगा 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। ध्यान देना इत्थे पावर 1 है, इत्थे 3/2 है, तो जो असीं ये दोनों पावर्स नूं ऐड करांगे तो ये -1/2 बच जाता है आ वाला। सो इस तरीके नाल असीं सिंपल मैथेमैटिकल स्टैप यूज करते हुए इनू कॉमन लभ्या है, ये कैंसल हो गया, सो ये बच गया 2 पाई m नॉट डिवाइड बाय h 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर पावर -3/2। ये साडी ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, इनू असीं 7 नंबर इक्वेशन लिख दिंदे हां। सॉरी बेटा ये ग्रुप वेलोसिटी का नहीं, इट इज डी बाय डी वी। तो हम ध्यान नाल देखना 7 नंबर इक्वेशन च डी बाय डी वी है, 6 नंबर इक्वेशन दे विच डी ओमेगा बाय डी वी है, तो 5 नंबर इक्वेशन च असीं ग्रुप वेलोसिटी लभनी है दोनों नूं डिवाइड करके। सो फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7 जिहड़ी ग्रुप वेलोसिटी है उसका फार्मूला आ जाता है, दोनों नूं असीं डिवाइड कर देना है इक्वेशन नंबर 6 ते इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 6 है 2 पाई m नॉट v बाय h 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर पावर -3/2। 7 नंबर इक्वेशन है 2 पाई m नॉट डिवाइड बाय h 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर पावर -3/2। ये सब कैंसल हो जाता है, v बच जाता है। सो Vg इज इक्वल टू v। इतों पता चलता है कि ग्रुप वेलोसिटी जिहड़ी है वो वेलोसिटी ऑफ पैकेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दे नाल मूव करती है। सो द रिजल्टेंट वेलोसिटी Vg की चीज़ है बेटा, Vg है रिजल्टेंट वेलोसिटी जिहदे नाल वो वेव्स मूव करदियां ने जिन्हां तो वेव पैकेट बनया होया है। V है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो हुण दोनों की वेलोसिटी बराबर है, तो वो जिहड़ियां वेव्स ने जिहड़ियां कि आपां कल दे लैक्चर च पढ़िया सी कि वो पार्टिकल नूं छड्ड के अगे लंघ गईयां, हुण अगे नहीं लंघ सकदियां वो क्योंकि सेम वेलोसिटी नाल मूव कर रही ने, तो ये आपस च हुण जुड़े हुए ने। तो यही बेटा आपां प्रूव करना सी कि ग्रुप वेलोसिटी ते फेज वेलोसिटी जिहड़ी है वो बराबर हुंदी है। ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो ये नाल अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी ते फेज वेलोसिटी दे विच की रिलेशन है।
So as particle velocity, phase velocity is given by omega by k. So omega is equal to Vp into k, क्रॉस मल्टीप्लाई करता, इसनों असी इक्वेशन नंबर 1 लिख लेने। ग्रुप वेलोसिटी हुंदी है डी ओमेगा बाय डी के, एक नंबर दे विचों ओमेगा की वैल्यू पुट करती, डेरीवेटिव लैने आ Vp डी के बाय डी के, Vp by dk. So it is Vp dk by dk 1 ये साडी 2 नंबर इक्वेशन है, ये साडी 1 नंबर इक्वेशन है। तो हुण असीं इन्हां दा रिलेशन बनाना है। रिलेशन बनाने के लिए देखो असी की करते हैं बेटा, एस के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, टेक लॉग बोथ साइड्स, सो log टू द बेस ई log 2 pi by lambda. So we can write it as log e 2 pi minus log e lambda. इत्थे असी फार्मूला लगाया है log a by b is equal to log a minus log b. ये सिंपल लॉगरिथमिक फार्मूला है, सो वो असी इत्थे अप्लाई करता। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, एग्जैक्ट डिफरेंशियल लेना है। लॉग का डेरीवेटिव होंदा है 1 बाय के, एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी के, 2 पाई फर्स्ट टर्म कांस्टेंट 0, 1 बाय लैम्डा डी लैम्डा, सो इट इज डी के बाय के, डी लैम्डा बाय लैम्डा, रेसिप्रोकल ले लो, के बाय डी के माइनस लैम्डा बाय डी लैम्डा। सो इनू असी इक्वेशन नंबर 3 लिख देने। सो 2 नंबर ते 3 नंबर इक्वेशन नू जदों असी मर्ज करते हैं, ये विच है डी के 1 बाय डी के की वैल्यू ये असी इत्थे पुट करन लगे हैं, तो देखो इक्वेशन की बनेगी। पहला इक्वेशन नंबर 2 नू मैं रीराइट कर लेना, Vp प्लस के डी वी पी बाय डी के। सो के बाय डी के की वैल्यू इत्थे पुट कर देने आप इथों। सो वी जी वी पी नैगेटिव साइन आ गया, लैम्डा डिवाइड बाय डी लैम्डा, लैम्डा dVp by d lambda. So this is the relation between the group velocity and the phase velocity. So ਇਹਦੇ ਨਾਲ बेटा अपना फर्स्ट पार्ट ਜਿਹੜਾ है डी ब्रॉगले कंसैप्ट ये पूरा हो जाता है। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पढ़िया कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक मटीरियल पार्टिकल है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक मटीरियल पार्टिकल है ਜਦੋਂ ਉਹ मूव करता है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक वेव एसोसीएटेड ਹੁੰਦੀ है। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ पढ़िया डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ स्टडी ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ पता ਲੱਗਿਆ कि ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ है ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ स्पीड ऑफ लाइट ਤੋਂ ਵੱਧ आ ਜਾਂਦੀ है। फिर असी वो जी साड़ी पहली सपोजिशन सी उसनों असी मॉडिफाई करते हैं। असी सोचा कि नहीं एक वेव नहीं है, एक तो ज़्यादा वेव्स जुड़िया हुई ने। तो स्पैशल केस वजों असी दो वेव्स लैके जो असी इनू हल किया तो साडा जिहड़ा रिजल्ट है वो बिल्कुल सही आया। तो वो जो वेव पैकेट है उसकी जी वैलोसिटी है वो पार्टिकल वैलोसिटी के बराबर आ गई। तो हुण वो एक दूजे नालों वख नहीं हो सकते, वो इकट्ठे इकट्ठे चली जाते हैं।
So this completes our topic. Thanks a lot.